Bismillahirrahmanirrahim. Now, Bismillahirrahmanirrahim. This is IELTS listening exam, and it is according to 2025 new scheme, means the new attempt, which has started from the March of this specific year, 2025. So, in March 2025, the listening and the onwards, listening is what? Listening kya hai? Listening, there will be total 30 minutes for this exam in the exam room. So there will be total 30 minutes in exam. And in these 30 minutes, you people are required to work on 40 questions. So there will be total 40 questions which we need to answer in the exam. These 40 questions will be divided into four sections. And these four sections will contain the answer in this way, 10 questions per section. 10 questions per section will be the symmetry of the exam in your examination room. So what I said up till now, अभी तक मैंने क्या बात करी है? अभी तक मैंने ये बात करी है that in exam, total 30 minutes will be given to you. 40 सवाल करने होंगे. These 40 questions will be divided into four sections. Every one section will contain 10 questions each. So in this way, आपके total 40 questions जो हैं वो 4 sections में divided होंगे. जब हम इन डिवीजन्स की बात करते हैं तो एक बात हमें अपने जहन में रखनी है that in exam room we should expect that section number 1 will be the easiest section, will be the easiest section among all four. And section 2 should be considered as a tough section. Section 3 should be taken as tougher, and section 4 will be considered as the toughest section of the exam. So now what we have discussed up to now, there are how many sections in exam? There are total 4 sections. Every specific one section will contain how many questions? 10 each. So section 1 will be of 10, section 2 will be of 10, section 3 will be of 10, and section 4 will be of 10 as well. So if there are total 4 sections with 10 questions each, that means what I've told you, that section 1 is the easiest one, section 2 is tougher, section 3 is tougher, and section number 4 is the toughest exam in the examination room. So now the questions which will be divided among these all sections, I'm going to make a list of the type of questions. But first, remember, in exam, what will happen? What will be the model? Model of exam. Exam में किस model के तहत काम हो रहा होगा? The model of exam will be number 1. There will be a record. Number 1, there will be a recording. There will be a recording which will be played. So मैं लिख रहा हूँ recording is played. एग्जाम में a recording is played. एक recording को चला दिया जाता है. This recording which is played in exam, it is played once only. It is played once only. That means that if you have missed some of the portion, and if there was some answer in that specific portion, अगर आपने कोई specific portion miss कर दिया है और खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई सवाल था, that means that that specific question is now missed out. There is only a single time played recording in the exam, which is played once only. अगर हमसे कोई specific question miss हो गया है उस recording में, तो that cannot be replayed to take that question. अल्लाह ना करे question रहे कोई हमसे, नहीं रहेगा. लेकिन what I'm saying is that अगर कोई recording का हिस्सा हम miss कर जाते हैं, तो we will not re-get that. It will be played once only as a rule of the examination room. Number 3, there will be 2 types of voices.
in exam. Voice number one voice, one type one will be a single voice. एक बंदा या बंदी बोल रहे हो, एक बंदा या बंदी बोल रहे होंगे, पर हमने उस एक सिंगल वॉइस में से अपने क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों को सुनना है, एंड वी हैव टू आंसर आवर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सिंगल वॉइस जो हमने सुने. So all questions and answers will be in that specific single voice. Is it clear? All questions and answers will be in that single voice. Is it clear? So now this single voice questions are known as questions जो इस single voice के अंदर होते हैं उनको हमें नाम देता हूं मोनोलॉग questions. मोनोलॉग का मतलब होता है वो questions which contain one voice only. So monologue questions कहलाएंगे. वो questions जिनमें एक single voice होगी वो क्या कहलाएंगे? Monologue questions. Is it fine? So monologue questions वो questions होंगे where there will be a single voice. Number one. Number two. इसके बाद दूसरे नंबर पे उन questions की बारी आती है which will contain type 2 voice. Type 2 voice is known as dual voice. क्या कहलाती है? Dual voice. So दो तरह की voices होंगी. One will be single, one will be dual. अगर तो होगा सिंगल वॉइस में रिकॉर्डिंग तो उसके साथ अटैच क्वेश्चंस को हम नाम देते हैं मोनोलॉग क्वेश्चंस, और वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिसमें दो वॉइसेस होती हैं हम उसको नाम देते हैं ड्यूअल वॉइस. मींस डायलॉग क्वेश्चंस. डायलॉग क्वेश्चंस इसका मतलब क्या हुआ? Exam में there will be two type of questions. One will be known as monologue questions and second will be known as the dialogue questions. अब आगे चलिए. The monologue questions are considered as relatively tough. Relatively tough because एक voice लगातार चल रही होती है and we have to take questions out of, we have to take answers out of the same voice. जब एक वॉइस होगी तो इसमें रिलेटिवली पॉजेस होती तो है मगर रिलेटिवली स्मॉल पॉजेस होते हैं. जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो एक वॉइस जो है वो बात कर रही होती है, दूसरी वॉइस जवाब देती है, दरमियान में पास का आना या थोड़ा सा लैग का आना, थोड़ा सा डिले का होना नॉर्मल होता है. टाइप 2 क्वेश्चंस विल बी इन द ड्यूअल वॉइस. ड्यूअल वॉइस में हो ये टाइप 2 क्वेश्चंस हैं जिनकी ड्यूअल वॉइस होती है. इन क्वेश्चंस को हम लोग नाम देते हैं डायलॉग क्वेश्चंस. इनको हम क्या नाम देते हैं? डायलॉग क्वेश्चंस, जो मैं पहले बता चुका. अब जब हम बात करते हैं डायलॉग क्वेश्चंस की तो याद रखिए डायलॉग क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड relatively easy to handle. These are considered relatively easy to handle. Easy to handle for the reason that इनके अंदर जो स्पीड ऑफ स्पीच होती है वो relatively टूट जाती है. से मुराद ये कि जरा कम होती है. उस कम होने की वजह से आप लोगों को अपने आंसर्स ज्यादा जल्दी मिल जाते हैं in comparison to what? In comparison to the dual voice what you are handling or what you normally handle. तो इस तरह से हमारा जो दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तरह के क्वेश्चन को हमने क्या नाम दिया? एक तरह के क्वेश्चंस को हमने नाम दिया डायलॉग क्वेश्चंस और दूसरों को हमने क्या नाम दिया? मोनोलॉग क्वेश्चंस. अब अगर हमें सेक्शंस को जानना है तो नॉर्मली इन एग्जाम सेक्शन नंबर 1 it is confirmed without any exaggeration and without any confusion. Section 1 normally remains. Section 1 is normally a dual voice, means this contain dialogue questions. In majority, the section 1 contains dialogue questions. Number 1, number 2. The section number 4 आपके एग्जाम में it will be a monologue. It will be a monologue. Section number 3 and section number 2 and 3, although कई लोग कहते हैं 2 जी monologue होगा, these can either be dialogue, can either be monologue and can either be mix of them.
क्लियर? डू नॉट मेंटली एक्सपेक्ट दैट 2 मोनोलॉग होगा, 3 डायलॉग होगा. इट कैन बी आइदर, इट कैन बी मिक्स ऑफ इट. सम क्वेश्चंस मोनोलॉग, सम क्वेश्चंस डायलॉग. इज इट फाइन? सो नाउ, लेकिन जो कंफर्मिटी है, सेक्शन 1 विल ऑलवेज बी डायलॉग एंड सेक्शन 4 विल ऑलवेज बी मोनोलॉग. ओके, सिंगल वन क्वेश्चन सर. आगे चल. सो नाउ देयर आर टू, अब मैं मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूं. देयर आर, नंबर 4, देयर आर 2 types of sheets on the computer screen. There are 2 types of sheets on the screen. कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देयर आर 2 टाइप ऑफ शीट्स, 2 तरह की शीट्स होंगी. जो एक शीट है जो आपके आई मीन जो आपके एग्जाम में पहले जब मैनुअल हुआ करते थे तो उस वक्त आपको दी जाती थी क्वेश्चन शीट कहलाती थी, और जो साथ दूसरी शीट दी जाती थी वो आंसर शीट कहलाती थी. अभी भी देयर आर 2 टाइप ऑफ शीट्स ऑन एग्जाम स्क्रीन. रादर अच्छी बात ये होगी that there will be 2 type of sheets in exam कर देता हूँ, बजाय इसके कि मैं वहां पे स्क्रीन करूँ. sheets in exam, 2 type of sheets in exam. एग्जाम में 2 तरह की शीट्स होंगी. जो पहली तरह की शीट है इन एग्जामिनेशन, इट विल बी नोन एज कंप्यूटर स्क्रीन. इट विल बी कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, एंड दिस विल कंटेन योर ऑल क्वेश्चन. जो आप रिकॉर्डिंग में सुन रहे होंगे वो सारे का सारा आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा. तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा जो आप सुन रहे होंगे. सो जब हम कंप्यूटर स्क्रीन की बात करते हैं तो उसके ऊपर व्हाट देयर विल बी, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा जो आप कंप्यूटर अपनी आई मीन जो आप रिकॉर्डिंग में सुन रहे होंगे. नंबर 1, ये है पहली बात. नंबर 2, व्हाट विल बी द सेकंड शीट? What will be the second sheet? The second sheet will be the sheet that would be a rough sheet. दूसरी शीट होगी रफ शीट, और ये रफ शीट जो है ये आपके पास मौजूद होगी विद पेंसिल, और आपने इस पेंसिल बॉल पॉइंट से इसके ऊपर अपने रफ आंसर्स अगर ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग लिखने हैं तो यू कैन राइट. There are very common errors being done by the students nowadays. मैं आगे जाके उनको भी हाईलाइट करूँ. Allah has blessed us about 8 band on an average in listening. आप लोगों से रिजल्ट अगर ग्रुप्स में शेयर होते रहते हैं तो लिसनिंग में अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 8 बैंड. क्या मतलब, अगर एक का 7 है तो दूसरे का 9 होगा, तो एवरेज 8 बनती है. क्लियर है? ये कैसे है ये अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा, और कल से तो खैर की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तो बहुत ही क्लियर होगा. एक स्पेसिफिक बुक आइल्स की 4 टेस्ट कंटेन करती है, तो 4 टेस्ट का मतलब हो गया कि एक बुक में कितने क्वेश्चन हो गए? 160. बट हियर इन आवर क्लास वी विल बी डिस्कसिंग मोर देन 2600 क्वेश्चंस. 2600 से ज्यादा सवाल करेंगे हम क्लास के में. इसका मतलब यह है कि व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग अबाउट 100 टाइम्स ज्यादा नहीं, 100 टाइम्स ज्यादा नहीं, बल्कि 150 टाइम्स ज्यादा जब क्वेश्चंस करने जा रहे होंगे आप, तो देन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बेटर प्रैक्टिस इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आप होंगे वो आउटस्टैंडिंग बैंड होंगे. मगर कुछ चीज़ों को बाय कोर जानना जरूरी है. कुछ लोग अपने हाथ से गलती करके अपने नंबर को ज़ाया कर देते हैं. कैसे? मैंने बोला है कि भी रफ शीट जिसपे आप पेंसिल के साथ अपना आंसर लिख सकते हो. व्हाट इज द बेस्ट वे? आप क्वेश्चंस को गौर से सुनते जाएं और अपने जो आंसर्स हैं उन आंसर्स को अपनी अटेंशन ऑन दैट स्पेसिफिक कंप्यूटर स्क्रीन जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए और आंसर्स के गैप्स बने हुए बीच में, उस पर टाइप मत करें रिकॉर्डिंग के साथ. अगर आप टाइप करेंगे रिकॉर्डिंग के साथ तो आपकी सारी तवज्जो कहाँ चली जाएगी? टाइपिंग पे. जब आप टाइपिंग पे जाएंगे तो फिर दूसरी तवज्जो कहाँ जाएगी? स्पेलिंग पे. जैसे ही आप टाइपिंग और स्पेलिंग की तरफ अटेंटिव होंगे आपकी तवज्जो हटेगी लिसनिंग से. जैसे ही लिसनिंग से हटेगी जो कि कोर है आपकी सक्सेस का, तो आपके वो सारे के सारे क्वेश्चंस दरमियान में से मिस होने का इतना ही चांस है कि जितना हाथ छोड़ के गाड़ी चलाने का चांस है कि एक्सीडेंट खुलाना खस्ता हो जाएगा. क्लियर नोट? सो व्हाट अ गुड स्टूडेंट डज नॉर्मली, वो जैसे ही क्वेश्चन का आंसर आता है, मैं हाईलाइटिंग करना खुद सिखाऊंगा. वी हाईलाइट द कीवर्ड्स. क्या होते हैं कीवर्ड्स आगे जाके समझाऊंगा. हम कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं और हम अपनी नजर को वहीं पे रखते हैं स्क्रीन पे उन वर्ड्स पर. जैसे ही हमारा आंसर आता है हम अपने आंसर को रफ शीट के ऊपर विदाउट कंसिडरिंग दी स्पेलिंग्स हम हिंट लिख लेते हैं और हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करते. इवन इफ आई टेल यू, मैं जब कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो मैं अपनी जो रफ शीट है उसको देखता भी नहीं.
मैं बगैर देखे उसको लिख रहा होता हूँ, बिकॉज आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें आंसर लिखना नहीं होता, सिर्फ टिक करना होता है ABC। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज में कुछ भी नहीं लिखना, फॉर एग्जाम्पल मैचिंग क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखना आप, मेरी बात समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखना आपने। तो आपने 50% क्वेश्चन में तो लिखना कुछ नहीं, वो तो आप डायरेक्टली वहीं पे आंसर कर रहे होंगे। तो 50% आपने टाइप करने हैं, वो आंसर आप इस शीट पे लिखने। और हर 5 क्वेश्चन के बाद, 4 क्वेश्चन के बाद आपको 20 to 30 सेकेंड्स का गैप मिलता है। फिर हर सेक्शन के बाद आपको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का गैप मिल रहा है। आप उन गैप्स में उन क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, आंसर्स को जो आपने अपनी रफ शीट के ऊपर लिखे थे। तो हम वी हैव टू अडॉप्ट सर्टेन मॉडर्न स्मार्ट टेक्निक्स to enhance our band in the listening overall। लेकिन वो आगे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो things will get better। तो दो चीजें हैं, एक कंप्यूटर स्क्रीन और नंबर 2 इज द रफ शीट विद द पेंसिल। ओके, आपकी रफ शीट जो है वो आंसरेबल नहीं है या मार्केबल नहीं है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हुई हुई हर चीज मार्केबल है। सो आप जो लिखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे दैट इज मार्केबल। आप कुछ भी लिखे रफ शीट पर, सब कुछ जो लिखा हुआ है रफ शीट पर दैट इज नॉट मार्केबल। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे हुआ इवन अ सिंगल अल्फाबेट इज मार्केबल। मेरी बात समझ आ रही है? यू हैव टू बी worried about the spellings, to worried about the screen। Okay, if you are worried about an option selection, worry about the screen। if you are worried about some tough word, worry about the screen। इस रफ शीट के ऊपर जो कुछ भी है that is not your problem, that is not your worry। मेरी बात समझ में आती है? आगे चलिए। So now there were 2 sheets in exam, one will be the computer screen and the second type of sheet will be the rough sheet with the pencil that will be given to you by the examiner। आगे चलिए। नंबर 5, मॉडल ऑफ द क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नो एक्स्ट्रा टाइम, नो एक्स्ट्रा टाइम, नो एक्स्ट्रा टाइम is given in computerized, no extra time is given in computerized exams after March 2025। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले आप रफ शीट के ऊपर जो क्वेश्चन शीट कहलाती थी, रफ आंसर लिखते थे और आफ्टर एग्जाम हमें 10 एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते थे, जिन 10 एक्स्ट्रा मिनट्स में हम अपने आंसर्स को ट्रांसफर करते थे अपनी रफ शीट क्वेश्चन शीट से आंसर शीट पर। अगर अब वो नहीं मिलते हैं, इज इट फाइन? आगे चलिए। So now number next is what? Number next is now the types of questions which can be there in exam. Types of questions. Types of questions in exam. अब क्वेश्चन की जो एग्जाम में टाइप्स आती हैं, दोज आर नंबर 1, द फर्स्ट टाइप इज नोन एज द फॉर्म फिलिंग क्वेश्चंस। फॉर्म फिलिंग क्वेश्चन पहली टाइप का सवाल कहलाता है फॉर्म फिलिंग क्वेश्चंस। इसमें 2 वॉइसेस होती हैं, एक फॉर्म नॉर्मली फिल करना होता है। रिकॉर्डिंग में वी आर गिवन विद द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, दैट इंफॉर्मेशन वी डू राइट ऑन आर स्पेसिफिक आंसर शीट। इज इट क्लियर? सो फॉर्म फिलिंग क्वेश्चंस पहली तरह के क्वेश्चंस होते हैं। The second type of questions are known as selection questions। Selection questions में हमें आंसर ऑप्शंस दी होती हैं। उन आंसर ऑप्शंस में से हमें करेक्ट को पिक करना होता है, जो इनकरेक्ट होती है उसको हम छोड़ देते हैं। वी आर गिवन विद आंसर, आंसर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हमें उन आंसर्स को जो गिवन होते हैं, उन आंसर ऑप्शन जो गिवन होती हैं उनमें से राइट आंसर्स को पिक करना होता है। राइट आंसर्स को पिक करके वी हैव टू राइट देम, हमें उसको पिक करना है और उसको हमें लिखना है। इज इट फाइन? चलिए आई मूव अहेड। Now, the third question that is very common and comes up in exam, one of the very famous matching questions. Matching questions. We are given with the questions, we are given with the answers, and we have to create the match between कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। दोनों चीजें दी होती हैं, बट वी हैव टू क्रिएट द मैच बिटवीन देम कि कौन सा आंसर किससे रेलेवेंट है। So now, next one is number 4, and this number 4 are known as MCQs, multiple choice questions। Multiple choice questions are of 2 types। One is of single answer। पहली तरह का सवाल है जिसको हम कहते हैं सिंगल आंसर, एंड नंबर 2 हम कहते हैं इट इज अ ड्यूअल, या अच्छा वर्ड होगा मल्टीपल आंसर्स।
मल्टीपल आंसर, सो एक सिंगल आंसर क्वेश्चन है, दूसरा मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चन है। इस तरह से दो तरह के एमसीक्यूज कैन कम अप इन एग्जाम, आइदर एक एग्जाम में दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकते हैं। सो नाउ नंबर फाइव इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन ब्लैंक्स, फिल इन ब्लैंक्स में there are multiple type of blanks. Number one, there is a simple blank. Simple blank वो blank है जो हम अपने बचपन से करते आ रहे हैं। And in this specific blank, one एक specific sentence के अंदर एक I mean कट लगा होता है, हमने उस कट के अंदर फिल करना होता है कि हमारा आंसर क्या होगा, और इस तरह से हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के वास्ते जाते हैं और उस कट के अंदर अपना आंसर लिखते हैं। नंबर टू, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में होता है फिल इन द ब्लैंक्स का, मैं अगर यहाँ से ही इसको ब्रेक डाल दूँ तो आपको जो है ना वो आसानी होगी कि इसको आंसर्स ढूंढने में। कंट्रोल सी एंड जस्ट इंसर्ट पेज ब्रेक। चलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स को एक सिंगल ग्लास में देखते हैं। So now, fill in the blanks में simple blanks. Number two, there are summary blanks. Summary blanks में होता क्या है? We are given the questions, but वो सारे के सारे एक पैराग्राफ की सूरत में होते हैं और उसके दरम्यान में कट्स लगे हुए होते हैं और उन कट्स को हमने फिल करना होता है, और normally all questions relate to a single topic. For an example, one summary is relating to the black bear, one summary may be relating to some famous person, some summary may be relating to one famous place, one summary can be regarding Australia, one can be regarding the Americas, some change, one can be regarding weather. So बहुत से टॉपिक्स पर हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बहुत से क्वेश्चंस एक ही स्पेसिफिक टॉपिक से रेलेवेंट इकट्ठे होते हैं, इस तरह के ब्लैंक्स हम कहते हैं समरी ब्लैंक्स। एंड आपका सेक्शन 4 जो मोनोलॉग में है, द मोस्ट प्रोबब्ली दैट विल बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्लीज पूरा का पूरा सेक्शन। नंबर 3, these are known as fill in the blanks of sentence completion. Sentence completion. Sentence completion में हमें examiner half sentence देता है and then we have to search the rest of the half during the recording and we have to paste it up. जैसे MCQs की तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 ऊपर हमें सेंटेंसेस दिए हुए, हाफ नीचे 5 आंसर्स दिए हुए, एंड हमने रिकॉर्डिंग सुन के बताना है कि 1 के साथ ए अटैच हो रहा है, बी या सी, हमने जो अप्रोप्रिएट 3 है उन 5 में से उठा के ऊपर साथ अटैच करना है। दैट इज नोन एज सेंटेंस कंप्लीशन। नंबर 6 इज द टेबल कंप्लीशन। Table completion questions. Number 7 are the schedule completion questions. Schedule completion questions, and then next is fill in the table schedule completion के बाद it is timeline questions. Timeline questions are normally those questions जिनके अंदर years दिए होते हैं लेफ्ट साइड पे और कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं 1950, 51, 52, और पूरी की पूरी टाइमलाइन आपने कंप्लीट करनी है, उसके सामने आपने आंसर करना है 50 में क्या हुआ, 51 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ, वो आंसर्स बताते जाते हैं और हमने आगे उसको लेके चलना है। टाइमलाइन कंप्लीशन क्वेश्चंस जो है, दीज आर द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक टाइप तो जरूरी पहुंच रही होती है। आगे चले नंबर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हमसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है और आंसर भी बताता है। क्वेश्चंस दिए होते हैं, आंसर की जगह खाली होती है, हमने रिकॉर्डिंग को सुन के अपने आंसर्स को उसके नीचे लिखना होता है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स कहलाते हैं। आगे चलिएगा। नंबर नेक्स्ट इज लेबलिंग द डायग्राम। लेबल डायग्राम, हमें डायग्राम दी होती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स दिए होते हैं, हमने रिकॉर्डिंग सुन के हर एक स्पेसिफिक पार्ट के रेलेवेंट बताना होता है कि ये स्पेसिफिक जो पार्ट है इसका नाम क्या है। सो फॉर एग्जांपल देयर आर 5 पार्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन, 5 हमने रिकॉर्डिंग से सुनने हर पार्ट का क्या नाम है, एंड देन वी आंसर देम। नंबर 11 इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन नाउ अ डेज इन दिनों में, एंड दैट इज नोन एज मैप्स क्वेश्चन इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। हम उस 5 to 6 क्वेश्चन एग्जाम में हमारा मैप बना रहा होता है आजकल। मैं रिकॉल कर देता हूँ,
सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, 17 तक चले जाते हैं, लेकिन मैंने सारे ब्लैंक्स को एक जगह पे लिख दिया, एमसीक्यूज को एक जगह पे लिख दिया, इस तरह से मैंने इकट्ठा किया, तो फिर ये जो हमारा टोटल जो है वो 11 बन रहा है। अगर मैं इनको अलहदा अलहदा कर दूंगा तो 14 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो 14 टाइप्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे। आई रिवाइज देम, आई रिकॉल देम। The first type of question that you find in exam, the form filling questions, selection questions, matching, and MCQs. MCQs can be of two types. Number one is single answer, and number two is the multiple answer, means the dual answer MCQs. आगे चलिए. So now, when we talk about the MCQs, and after MCQs, we find it is fill in the blanks, which can be simple, summary, and sentence completion, table completion, schedule, timeline completion, and question and answers, and then label the diagram and the famous maps questions. So these are 11 different type of questions which can come up in exam, and we have to answer them. We must have to build our expertise on these all type of questions, so that if anyone out of them is appearing in exam, we should not be in any specific pressure, any type of pressure. We should not feel an exam. Okay, so we have to prepare all of that. So marking scheme क्या बनती है? Marking scheme क्या? Examiner number कैसे देता? The first thing that we should be conscious about is number one is the correct answer. Correct answer. Correct answer. Correct answer से मुराद लो कहते सर आंसर करेक्ट होगा तो नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारा आंसर को देखेंगे, लिसनिंग का एग्जाम है, so what we have listened, that is the answer. For example, अगर हमारा क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, पर हम उसकी जगह पे स्टूडेंट लिख देते हैं, तो what will happen now? Although the answer is right, but answer is not adequate because we have listened students. So IELTS में there is no partial credit. Listening में there is no partial credit. There is a complete credit question. एक सवाल का एक नंबर है तो फिर पूरा ठीक होगा तो पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आधा ठीक है तो आधा नंबर मिल जाए। ओके, सो इट इज अ कंप्लीट क्रेडिट क्वेश्चन एग्जाम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, दैट आंसर विल गिव यू द नंबर। नंबर 2 आर द करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग। नंबर 3, द थर्ड मार्किंग बेस फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग और दिस स्पेसिफिक एग्जाम, इट इज व्हाट नोन एज करेक्ट आंसर, करेक्ट स्पेलिंग एंड करेक्ट इंस्ट्रक्शंस। करेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या मतलब? करेक्ट इंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन से पहले एग्जामिनर बताता है वो चाहता है क्या। कभी कहता है 1 वर्ड आंसर इज रिक्वायर्ड, कभी कहता है 2 वर्ड आंसर इज रिक्वायर्ड, कभी कहता है 2 वर्ड्स एंड अ नंबर, यानी कि नंबर भी साथ अटैच कर सकते हैं, कभी कहता है 2 वर्ड्स और अ नंबर, यानी कि या वर्ड्स लिखेंगे या नंबर, कभी कहता है ओनली नंबर। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर? अगर आंसर है 9 और ऊपर कहता है नंबर्स आर नॉट अलाउड, ऊपर लिखे हुए हैं 2 वर्ड्स आंसर ओनली, तो फिर 9NINE आंसर होगा, डिजिट 9 नहीं हो सकता। अगर उसकी रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि 1 वर्ड आंसर इज रिक्वायर्ड, अगर उसे नंबर अलाउ नहीं किया तो फिर आप 9 के डिजिट नहीं लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? So in specific questions नहीं, in every question we have to follow the given instruction, and after every 4-5 questions examiner अपनी requirements को फिर repeat करता है। हर 4-5 सवालों के बाद आने वाले questions के requirements different होते हैं। So we have to be very, very, very conscious about the given requirement of the examiner. If we are not going to follow that, examiner is not going to give us the numbers. Clear? So it is what we have to take things in mind. We have to take in the mind. So now, correct answer, correct spelling, correct instruction, and correct in English rule. Correct English rule. अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, मगर 100 में से 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। What do you mean by this? अगर आप देखें इंग्लिश रूल को, तो अगर आपका आंसर जो है वो नाउन में है, तो नाउन का मतलब होता है नेम में है, तो जब भी आंसर किसी नेम में होता है तो नेम का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप सारे जो है वो आप लिखें ही सारे आंसर्स कैपिटल वर्ड्स में। जब आप लिखेंगे सारे कैपिटल वर्ड्स के अंदर आंसर तो ये मसला नहीं होगा, लेकिन बहरहाल रूल तो है ना कि आपको नाउन में जब भी आंसर करना है और जब भी आंसर नाउन में होगा, आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नाउन, अगर नाउन में आंसर होगा तो आपको पहला अल्फाबेट जो है उसको कैपिटलाइज करना है। नंबर 2, अगर आपकी ब्लैंक से पहले 2 लगा हुआ है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आंसर खाए सेकंड फॉर्म में मिले, आपको उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर हैज हैव हैड लगा हुआ है, हैज हैव और हैड लगा हुआ है हमारी ब्लैंक से, हैज हैव या हैड लगा हुआ है हमारी ब्लैंक से पहले, तो आंसर विल ऑलवेज बी इन द थर्ड फॉर्म। आंसर हमेशा किस में होगा? थर्ड फॉर्म में होगा। मेरी बात समझ आ रही? तो वो जो थर्ड फॉर्म में आंसर है, थर्ड फॉर्म के आंसर को जो आप करने वास्ते जा रहे हैं, आपको खाए आंसर फर्स्ट फॉर्म में मिलाओ, यू हैव टू कन्वर्ट योर आंसर इनटू द थर्ड फॉर्म टू मीट और टू मैच द इंग्लिश
रूल्स. इज इट क्लियर नो? तो आपको उसके मुताबिक करना है. सो व्हाट आई मीन टू से दैट correct English rule we must follow in exam. We should remain conscious. I'm not saying every specific question will contain that type of thing, but what I'm saying that some questions may have difficulty for you, and you have to stay very vigilant. कि उस क्वेश्चन को आप आंसर करें, उस क्वेश्चन को आप अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, वगरना आपका नंबर खुदा न खास्ता जाया. ठीक है जी. So now these are what the markings. What must be known to us are the certain tips which can make our you may say which can make our work a bit easy. जो हमारे काम को नहीं है, हमें उन टिप्स को जरूर देखना चाहिए. So there are certain important tips for exam. हर क्वेश्चन की टिप्स सेपरेट, मगर there are a few general tips we must follow. Number one, the first tip that we should look. So there are certain tips which can make our exam relatively easy. थोड़ा आसान कर सकते. Okay, I'm not saying that एक बात याद रखिएगा, if the answer is not correct, सारी tips zero है. But to reach to the answer, these tips really help us and make things possible for us to answer in a very correct manner and gain our one number. Is it fine or not? Number one, सबसे पहले टिप्स फॉर एग्जाम. सबसे पहली टिप जो एग्जाम में हमारे काम आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टिप दैट इज वर्केबल इन एग्जाम, हाईलाइट द कीवर्ड्स. हाईलाइट द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स की मार्किंग जरूर करिएगा. कीवर्ड्स की मार्किंग जरूर करिएगा. अगर आप कीवर्ड्स की मार्किंग कर लेते हैं ना, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, पाकिस्तान came into being. Pakistan came into being in 1947. इस पूरी लाइन में अगर आप देखिए तो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक वर्ड है जो आपके ख्याल में, अगर ये 47 पे आंसर है, यानी कि अगर ये ब्लैंक बनती है 1947, तो आपके ख्याल में जब ये रिकॉर्डिंग चल रही होगी और ये सेंटेंस आएगा, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल भी स्किप नहीं हो सकता है? आंसर इज पाकिस्तान. So if I talk about this word will be known as a keyword. If you talk about came into being, we can get a replacement of formed in, है ना? Existed in, or it came on the map. We can use any of the synonym for came into being, but Pakistan replace नहीं होगा. सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, पाकिस्तान रिप्लेस होने नहीं जा रहा. इसका मतलब ये है कि अगर हम पाकिस्तान पर मजबूत खड़े हुए हैं, पाकिस्तान पर मजबूत खड़े से मुराद ये नहीं कि पाकिस्तान को पांव तले रोन दें. मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में पाकिस्तान पे खड़े हैं, तो जैसी रिकॉर्डिंग में पाकिस्तान का वर्ड आएगा, स्टे अटेंटिव नाउ, द आंसर इज अप्रोचिंग. अगर आपने कीवर्ड्स ठीक मार्क करने सीखी हैं तो याद रखिए, कीवर्ड्स के एक दो वर्ड्स पहले, एक दो वर्ड्स बाद आपका आंसर होता है. यू हैव टू बिल्ड एन एबिलिटी to correctly understand, correctly listen only 3 to 4 words. उनमें से एक कीवर्ड होगा, एक अद वर्ड पहले, एक अद वर्ड बाद में आपका आंसर आपका इंतजार कर रहा होगा. सो कीवर्ड पे जितने स्ट्रॉन्ग खड़े होंगे उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ही ज्यादा आंसर्स के निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे. इज इट क्लियर और नॉट? ये जनरल सी बात. नंबर 2, ये याद रखिएगा, 7 days a week. बड़ी अजीब सी बात है, 7 days a week. 7 days ऑफ द वीक. अगर आपको वीक के 7 days के स्पेलिंग आते हैं ना, यकीन कीजिए मुझसे 1 से 2 सवाल गिफ्ट में ले जाए. 7 days ऑफ द वीक, इसके स्पेलिंग अगर आपको आते हैं ना 7 days के, 1 से 2 क्वेश्चन गिफ्ट में लेने मुझसे. व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? या आप कहेंगे यार वो तो हम बचपन से याद कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है. आपको जब थर्सडे आता है ना लिखना, तो आप एक दफा आप सोच में पड़ जाते हैं थर्सडे के स्पेलिंग में आर पहले आ रहा है या आर बाद में आता है. बिकॉज वी रिमेन वेरी कैजुअल अबाउट द 7 days ऑफ द वीक. मेरी बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली आंसर्स भी थर्सडेज में होते हैं, थर्सडे सैटरडे. अब आपको सैटरडे में ई डालने की जरूरत, देयर इज नो ई इन द सैटरडे. मेरी बात समझ में आ रही है? तो 7 days अ वीक स्पेलिंग अगर आते हैं ना, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन गिफ्ट में लेने हैं. 12 months ऑफ द ईयर, 12 months ऑफ द ईयर, 12 months ऑफ द ईयर. अगर आपको साल के 12 महीनों के स्पेलिंग आते हैं, बिलीव मी 1 से 2 सवाल गिफ्ट में लेने मुझसे.
आप कहेंगे सर इसमें कौन सी मुश्किल बात है, जब जनवरी लिखना पड़ता है ना और फरवरी लिखना पड़ता है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लोग लिखते हैं फरवरी FERVERY। मेरी बात समझ में आ रही है? जब लिखना पड़ता है ना आपको जनवरी, तो फिर उसके बाद लोग जनाब उसको जनवरी जब लिखते हैं तो वो सारे दरमियान वाले, ये इट इज नॉट जनवरी, इट इज जनवरी। तो कहने से मुराद है वो यूं कहा जाते हैं दरमियान में से। सो काइंडली कंसिडर कीजिए, आंसर्स होते ही ज्यादातर उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स में से हैं जो लगता है कि विच आर इन डाउट दैट स्टूडेंट्स विल बी अ बिट वीकर इन इट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आज 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, दो सवाल तोहफे में ले लें, एक से दो क्लासेस। जब भी आपका आंसर नेम में आएगा, याद रखिएगा एग्जामिनर स्पेल आउट द नेम, एग्जामिनर स्पेल्स आउट द नेम, सो स्पेल्स आउट। छोड़ दें उस सवाल की टेंशन लेना, रुक जाएं उस पर। एग्जामिनर खाए 2 कदम आगे चला जाए, वापस आएगा एंड ही विल रिकॉल, ही विल रिवाइज द नेम एंड देन ही विल मूव फॉरवर्ड। वो जब तक स्पेलिंग नहीं बोलेगा आगे नहीं जाएगा। तो नेम जब भी आएगा आपके स्पेलिंग एग्जामिनर बोलेगा, और एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिर गिफ्ट में ले लें, नेम ऑफ द प्लेस हो या नेम ऑफ द पर्सन, इट इज 99.9% इंशाल्लाह तो आपके जो है ना वो नेम को स्पेल आउट करेगा। इज इट क्लियर? आगे चलिए। नंबर 5, नंबर 5 अब नेम को वो स्पेल आउट कर रहा है। आगे चले नंबर 5, जब भी आंसर क्रेडिट कार्ड नंबर पे होगा, क्रेडिट कार्ड नंबर, जब भी आंसर क्रेडिट कार्ड नंबर का होगा, लास्ट 4 डिजिट्स को एग्जामिनर रिपीट करता ही करता है। हर एग्जाम में एक आधा सवाल मुझसे ले लें, नेम का एक सवाल मुझसे ले लें। आगे चले नंबर 6, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर का क्वेश्चन जब भी आएगा, आपका एग्जामिनर लास्ट 4 डिजिट्स को मोस्ट प्रोबेबली डिजिट्स 99% केसेस में लास्ट 4 डिजिट्स को एग्जामिनर रिपीट करता है टेलीफोन नंबर के। सो टेलीफोन नंबर आए तो व्हाट यू हैव टू डू, नॉर्मली द क्रेडिट कार्ड नंबर्स आर 12 नंबर्स होते हैं ना, तो कंसंट्रेट किस पे करना है? पहले वाले 8। किस पे कंसंट्रेट करना है? पहले वाले 8। क्यों? आखिरी 4 वो रिकॉल। मेरी बात समझ में आए? नंबर 7, याद रखिएगा एग्जामिनर को बड़ी मोहब्बत है 10 से 15 वर्ड्स, जो मैं कल जब शुरू कराऊंगा तो साथ साथ बताता जाऊंगा। 10 से 15 वर्ड्स एग्जामिनर को बड़े अच्छे लगते हैं। प्रेजेंटेशन, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, इंटरव्यूज। मेरी बात समझ में आती? स्केड्यूल, आपका एग्जामिनर हर टेस्ट में 4 से 5 सवाल ऑन एन एवरेज इन्हीं 15 वर्ड्स के अंदर से दे रहा हो, और आप उसके आंसर लिखना थे, क्योंकि एकेडमिक लिस्टिंग है तो इसके अंदर इन वर्ड्स का होना, क्लास प्रेजेंटेशन, इंटरव्यूज, मैप्स, चार्ट्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर है ना? तो 4-5 सवाल इसके अंदर से बन रहे होते हैं, 10 to 15 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी इसके अंदर से बन रहे होते हैं। इज इट डन और नॉट? नंबर 8, 8वां, याद रखिएगा आपके एग्जामिनर ऑलवेज प्लेज रिकॉर्डिंग इन ऑर्डर, इन ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। हमेशा आपकी रिकॉर्डिंग इन ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस चल रही होती है। क्या मतलब? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे खड़े हैं, जब तक क्वेश्चन 1 का आंसर नहीं होगा 2 पे नहीं जा सकता, फिर 2 का आंसर नहीं होता 3 पे नहीं जा सकता, 3 का आंसर नहीं होता वो 4 पे नहीं जा सकता। आप अगर अपने कीवर्ड्स की मार्किंग में स्ट्रांग और अपने कीवर्ड पे खड़े हैं तो सब हो नहीं सकता कि आपके सामने आपका आंसर ना आए और आप उसको ना कर पाए, बिकॉज ऑल आंसर्स रन इन द रिदम। जो लोग कीवर्ड्स पर नहीं खड़े होते उनको समझ ही नहीं आ रही थी हम कहाँ पे हैं, वो इस तरह से होते हैं, इस तरह कभी आपने आंधी में देखा ना शॉपिंग बैग उड़ रहे होते हैं, वो इस तरह से एग्जाम में उड़ रहे होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, सो वो अपना रिदम ही नहीं कर पाते। एक बात याद रखिएगा, मुझसे एक अरसा हो गया आइल्स पढ़ाते, किसी ने पूछा कि सबसे मुश्किल एग्जाम कौन सा है, तो मैंने कहा लिस्टिंग। उन्होंने कहा सर जीशान आप तो रीडिंग में इतने दिन लगाते हैं कि वो बहुत मुश्किल है, और राइटिंग में भी, और कहते हैं लिस्टिंग बहुत मुश्किल है, ये क्या रीजन है? तो मैंने उधर ये जवाब दिया था, आज मैंने ट्रेनिंग सेशन, आपको भी वही मैं बात बता रहा हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग सेशन में भी ये बात करता हूँ और आप लोगों को क्लास में भी ये बात समझा रहा हूँ कि आपके सारे एग्जाम सोचने का मौका देते हैं। राइटिंग भी, रीडिंग भी, स्पीकिंग भी आपको सोचने का मौका देते हैं। स्पीकिंग में अगर आपको 2 मिनट की स्पीच करनी हो तो पहले एग्जामिनर आपको 1 मिनट देगा, सोच लो अच्छे तरीके, फिर आप हाथ में पेपर ही पकड़ सकते हैं अपना। आप स्पीच के दरमियान कह सकते हैं आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन फॉर मी, आप पूछ सकते हैं दोबारा। लिस्टिंग इज द ओनली एग्जाम रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं चलनी। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अगर खुदा ना खास्ता खुजली महसूस होती है तो ओनली वन थिंग यू कैन डू कि कहीं आपकी तवज्जो अपनी तरफ ना ले जाए, वगरना आपको नहीं देखना दाएं कौन है, बाएं कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, आप खुद को प्लान नहीं कर सकते। आपको रिकॉर्डिंग के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना है। अगर टेलीफोनिक क्वेश्चन है तो आपने वही अंडरस्टैंड करना है और वही आंसर करना है। अगर टेलीफोनिक आंसर है तो आपने उसी में से आंसर निकालना है, आप उसको दोबारा नहीं चलवा सकते।
अगर मोनोलॉग है और स्पीड तेज लग रही है, 1x से ज्यादा लगती है, तो आपको उसी में से आंसर करना है। आप उसको ना तो रिकॉल ना रिवाइंड ना स्लो करा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मिस्ड इज मिस्ड। आपको अपने आप को एडजस्ट करना है लिसनिंग के एग्जाम में। ना तो आप खुद को प्लान कर सकते हैं, ना आप खुद को अलाइन कर सकते हैं, आपको सिर्फ एडजस्ट करना है। सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन लिसनिंग सो दैट एग्जामिनेशन रूम में किसी तरह का प्रेशर आप फील ना करें। सो दीज आर सर्टेन टिप्स which can make things very workable, make things very easy for you so that you people could perform better. Is it fine or not? अब अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो मुझसे 10 मरतबा पूछे, मैं आंसर करूंगा एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर फॉर टुमारोज क्लास फॉर द प्रैक्टिस। और जो यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा वही आप अपने सॉफ्टवेयर पे घर जाके कर भी रहे होंगे इंशाल्लाह। सिमिलर टेस्ट ऑफ द बुक विल बी द सिमिलर टेस्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर। एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मैंने मॉक एग्जाम्स अलग से डलवा दिए, लेकिन जो यहाँ पे टेस्ट बुक किए हैं वही टेस्ट नंबर आपके सॉफ्टवेयर में है, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी फीस ना हो। एंड highest number of the papers of the questions which are repeated in exam वही आपकी बुक में शामिल किए हैं सारे टेस्ट की सूरत में, और वही टेस्ट मैंने आपके सॉफ्टवेयर में डाले हैं ताकि आप एग्जामिनेशन अप्रोच को डेवलप कर सकें मेरे साथ भी और घर जाके अलहदा भी। सो क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम फ्रॉम योर साइड।